Namaskar, good evening, Salam Alaikum, Sat Sri Akal. Welcome to the Friday night 9:10 p.m. show only on YouTube. Brought to you by SCDS Global Branding Private Limited and Deal Flow Franchising. Produced by Brand Trigger and Explorer Freight in association with Capital One TV and Cloud Access. Ab Jeeto Bharat Ka Dil with the Great Indian Brand Show with Sudarshan Chetlur. So I want to discuss something really amazing with you. We were having a discussion with our next guest who is appearing today. Very, very, very special guest, which made me realize one thing. If you want a rare diamond, you have to dig deeper into the earth. You have to consistently keep digging till you reach that diamond, because the rarest of the rare diamonds are found in the deepest core of the earth. अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी, कि आप रोज खोद रहे हो, कंटिन्यूअसली जा रहे हो, और यू आर नॉट गिविंग इट अप, बिकॉज इफ यू गिव अप ऑल द एफर्ट हैज गॉन वेस्ट. क्योंकि देखो, जब तक डायमंड हाथ में नहीं आता तब तक तो नुकसान ही है, लेकिन जिस दिन डायमंड हाथ में आ गया, जस्ट इमेजिन what will happen to your life and how it will transform overnight the moment you strike diamond, not gold, mind you. And I'm talking about no one else but the founder and owner of Tare Zameen Par magazine. 4 साल से consistently doing it every month with so much of trouble. I've seen it because I'm a part of it in some or the other way. I'm a very small contributor there, but imagining what Gaurav Porwal does for the past 4 years, month after month, I mean, that is something really a feat that is matchless in the industry, because I haven't come across many who do that. And on the show today, welcome to another fantastic episode of the Great Indian Brand Show with Sudarshan Chetlur. And with us today is a very special Gaurav Porwal, the founder and owner of Tare Zameen Par magazine and also the chief editor of that. Thank you so much, Gaurav, for being with us over here today and choosing to come on the show. Thank you so much for inviting me as a guest. There is such a wonderful story जो आप कर रहे हैं. There are so many people who might want to do magazines, और मतलब वो एक रास्ता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि औरों को हेल्प मिले और लोग जाने क्या है तारे ज़मीन पर, and so that they could subscribe in more numbers to it, approach him, so that they could reach out to the entrepreneur community. क्योंकि आपकी magazine, I think, if I'm not wrong, I think it's around 6,000 to 8,000 in print. Right. Yeah. And that is going to all the, top of the top and very good entrepreneur community. They are the people who buy. And uske alawa, you have around 20,000 digital run. Right. And you're also listed on Magster. And uske alawa, I think now it is going international as well. और WhatsApp और community to community जो share हो रहा है उसकी तो गिनती नहीं है. Right? तो गौरव कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरा पैशन था. मेरे पैशन को ही मैंने प्रोफेशन में ही बदला. ये टाइम है 2011 की. हमारा एक कंपटीशन हुआ था. हाँ. तो मुझे अपने लाइफ के बारे में लिखना था मुझे अपने. तो मेरा मन लग गया. हाँ. मैंने लिख दिया. हाँ. मेरे दोस्त ने भी लिखा. होता है दोस्त बोलते हैं भाई फ्रेंड्स हम लोग टेक पार्ट में, भाई तूने क्या किया, मैंने क्या किया. वो बोलते तूने क्या किया, क्या तेरा दिखा, मैं तेरा टेक लूंगा. उसने मुझे ऐसे ही बोला. उसका नाम वसीम है. उसकी वजह से ही मैं बोलता हूँ उसने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं नहीं होता, क्योंकि वो मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ था. उसने मुझे बोला क्या किया हुआ है. उसने मुझे पढ़ा. उसने मैंने गाली दे के बोला सही बता तूने लिखा है, सही बता तूने वो क्या लिखा है. मैंने बोला हाँ भाई. फिर से उसने मुझे गाली दी तूने लिखा है. मैंने बोला कह रहा इसके तो सुपर हिट फिल्म बन सकती है. क्या बात है. तो मेरा आया तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी गया. मेरा जब वो आया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया, उस टाइम पे मुझे MP मावल मिश्रा थे, उनसे भी अवार्ड मिला. तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था. और उसके बाद हम मिडिल फैमिली से थे, तो राइटिंग में बोलते थे तो कब तू राइटर बन जाए फुटबॉल वाले, लेकिन फ्यूचर नहीं है. या हाँ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने देखा पीपल हु आर इनटू क्रिएटिव आर्ट्स ना, कई बार दे डोंट हैव फैमिली सपोर्ट. See, मैं भी क्रिएटिव आर्ट से आता हूँ. My family supported in whatever way they could, and I pushed myself to the brink to do what I'm doing, basically.
तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, या कि उसका फ्यूचर नहीं, तो आपने कैसे कन्विंस किया, मतलब हाउ डिड मैंने यू टेक? कन्वेंस नहीं किया। मम्मी ने बोला गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करनी, तो मैंने बोला हाँ रेडी। अब मैंने उनको ये नहीं बताया, मतलब होता मैं बताता अपने आप की सर खबाई करने वाली थी। हाँ और ना मेरे को उस टाइम इतनी क्लैरिटी थी, हाँ मुझे था करना है, हम्म, करना है। तो उसके बाद मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हम्म, होम ट्यूशन में ये होता था, मैं 3 बजे के बाद बिजी होता था, 3 से पहले का टाइम मेरे पास खाली है। ओके। तो उसमें एक्सप्लोरेशन कर सकता था, इंटरनेट में मैं आर्टिकल पढ़ सकता था, न्यूज़पेपर पढ़ सकता था अलग अलग टाइप से। ये क्या कब था, कॉलेज के बाद था या कब था ये? ये 2012 के बाद कॉलेज टाइम मेरा चल रहा था, अच्छा, जब कॉलेज चल रहा था। तो मेरे पास टाइम होता था। मैंने ओपन से अच्छा, solve ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ओके 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 बन रहा था, तो मेरे सुबह का खाली खाली होता था। ओके, ऑब्वियसली या। तो मैं उस टाइम में मैंने मंडे उसमें काफ़ी जाता था। वहाँ पे मुझे अलग अलग टाइप के ऑथर मिलते थे, अलग अलग टाइप के ऑथर मिलते थे, तो उनसे कनेक्टिविटी मुझे मिलना अच्छा लगता। मैंने किसी ऐसा पीए काम भी किया, वो मुझे कुछ ही नहीं देते थे, खाली मैंने उनसे एक्सपीरियंस कमाया। लेकिन उस टाइम मैंने टाइम दिया, ये था मैं घर में किसी को नहीं बताता था। अब होता है क्लैरिटी नहीं, क्या बताओगे, मतलब घर वालों को जो चाहिए वो कर रहा था, मैं बताता नहीं था, मैं करता रहता था। So I'll just take a little bit, steal time, some time from you over here. उन्होंने बोला कि मैंने उसको टाइम दिया। अपने सपने को आप टाइम दोगे तो आपका सपना आपका टाइम लाइफ टाइम बना देगा। Basically, that is one thing I draw from this very first part of our conversation over here. So brand owners, if you're coming up with magazine, अगर आप magazine लेकर आना चाहते, anything, subject doesn't matter, your commitment matters, your consistency matters, what you're giving to it matters. अगर आप उसे टाइम नहीं दोगे, वो आपकी लाइफ टाइम नहीं बना पाएगा, वो आपके, you won't be able to have the time of your life with it if you don't give the time that its life requires. So that's the entire thing. Yeah, please go on. उसके बाद तो उसके बाद मैंने टाइम दिया, तो मतलब मैं ना अपने गुरुजी को बहुत 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 मानता हूँ, स्टार्टिंग टू एंड मैं उन्हों को ही मानता हूँ, जो भी हूँ उन्हों की ब्लेसिंग है। एब्सोल्युटली। क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं होता, हमारे आसपास वो सुप्रीम पावर होती है। हाँ कभी कभार मैं रुक जाता हूँ, कुछ लिख रहा होता हूँ, एक होता है स्टक हो जाता कि हाँ जब तो आप ऐसा ऑथर आप भी तो समझते हो, जब तो हम कुछ लिख रहे हो, हाँ हमारा वो माइंड क्रिएटिविटी नहीं बने, तो मैं रुक जाता था। मैं उन्हों की फोटो सामने रखता था, तो मेरे को काफी अच्छे अच्छे आइडिया आते थे। तो उसके बाद मतलब मुझे लगता था मेरा रब मिल गया, मतलब वो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा अच्छा था। उसके बाद मुझे ये लगता था, मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, मुझे जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मुझे जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, ये जो मैं वक्त जी रहा हूँ ये मेरे लिए सबसे सुखमय है। क्या बात है। और इसको जीते जीते मैं मर भी जाऊं, मुझे तो कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं अपने पैशन को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, बेसिकली द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। मतलब उसमें मुझे ये था कि मैं किसी की भी कहानी को एंजॉय कर सकता हूँ। मैं कभी सुदर्शन बन रहा हूँ, मैं कभी सुदर्शन बन के एंजॉय कर रहा हूँ कि आई एम अ ब्रांड बिल्डिंग शो कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या फीलिंग रही, क्या डर रहा, कैसे उन्होंने पार किया, तो वो सारा महसूस। हाँ, एक्चुअली आप वो सारे किरदार जीते हो, हाँ, जिनके बारे में आप लिख रहे हो, तो you ये- become those stories that you're writing. तो आप एक दिन भी हो, फकीर भी हो, सब कुछ बन सकते हो। तो उसमें किसी की लाइफ में डेप्थ में जाना और सोचना कैसे उसने करता हो, जैसे कभी कभार मैं आपके बारे में थॉट करता हूँ, तो मुझे आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। ब्रांडिंग से बहुत सारी टिप आगे देखता हूँ, कभी कभार मैंने आपका कैरेक्टर करता हूँ, तो ऐसा ही सोचता हूँ कि जिंदगी बड़े पड़ाव में आप क्या करते हो, तो समझता हूँ आप लर्निंग करते रहते हो, बढ़ते रहते हो। अपने आप को खुद में महसूस करता हूँ, तो खुद से ये लाइनें बोलता हूँ, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मंजिल चाहे कुछ भी हो, मुझे बढ़ना है। आज यहाँ तक पहुंचा हूँ सीखने बदौलत, तो आगे भी बढ़ूंगा। जानता हूँ अभी चुनौतियां हैं, ऐसा तो दर्शन बता रहा हूँ, जानता हूँ सनोशी है, वाह, पर मेरे में जोश है, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, और यही जोश के साथ हमेशा बात करता हूँ। क्या बात है, that is so amazing. So it's not about me basically, it's about how you take inspiration from others. आप औरों से कैसे कैसे प्रेरणा लेते हो, वो उस पर डिपेंड करता है. So I'm really honored. आप कह रहे हो कि आप
कभी कभार मेरा कोई ख्याल आता है तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, एंड आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग, आई एम टच्ड बाय दैट. बट द जिस्ट ऑफ द थिंग इज, हमारे आसपास इतना सारा इंस्पिरेशन है, हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है. आप देखो, समझो, पढ़ो, आपकी फैमिली में नजर आएगा. बिल्डिंग अ ब्रांड इज लाइक नर्चरिंग अ चाइल्ड. आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजते हो? So now, where and in what community will you want to sell your brand? So can you imagine the passion behind what he just said? Thus spake the master, bolte na, like thus spake Gaurav. I always believe in one thing. Inspiration leads to aspiration, right? आप किसी चीज से इंस्पायर होते हो तो आपकी एस्पिरेशन बढ़ती है एक जगह पहुंचने की. इंस्पिरेशन लीड्स टू एस्पिरेशन लीड्स टू एक्सरसाइज. दैट मीन्स आप उसको फलीभूत करने के लिए आप उसके ऊपर काम करते हो. फिर उसके बाद दैट लीड्स टू गोल. That okay, you're near the goal because you've taken a step, you will definitely reach. So it's about how you draw inspiration, and Gaurav has so brilliantly put it. So now I will ask something. In spite of all these things, Gaurav, देखो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने बोला है, but there must have been challenges. So many challenges that have come across. And what would those challenges have been if there is anybody else in the same field? 2 or 3 challenges that one will definitely face, and how you overcame them. मतलब मेरी आई थिंक मैं बोलूँगा जब मेरी लाइफ में पैदा हुआ तभी मेरी लाइफ चैलेंजिंग थी. उससे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं. मैं 1 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर. उस टाइम में हमारे पास अच्छा पैसा था, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया. मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, और आज भी नहीं, क्योंकि आज भी मैं उसके बाद जाना पसंद करता हूँ जिसके पास पैसा है. तो मैंने एक अपने आप में ही आता है, अगर कोई मेरे पास नहीं आया तो मैं भी किसी के पास नहीं जाऊँगा. ये बात फैक्ट. तो मैं ये सोचता हूँ, मैं अपने आप को इतना कैपेबल बनाऊंगा कि लोग मेरे पास आएंगे. अगर नहीं आए तो मैं उसका खुद ही जिम्मेदार हूँ. Absolutely. मुझे रोना है तो मैं अपने नसीब में खुद ही लगूंगा. मैं ये बोलता हूँ, अगर मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो लोग मेरे पास आ जाएंगे, नहीं लिख गया तो मैं अपने आप को खुद ही रुलाने की तैयारी कर रहा हूँ. बस मेरे माइंड में यही चलता रहता है. जिंदगी में कभी बार रुक जाता हूँ, होता है ना, थक जाते हैं हम, बिजनेसमैन है, कभी कभार माइंड फट जाता है यार, ये छोड़े यार, ये सब क्या है, फेंक दे, कुछ नहीं रखा. पर वो आपको एक माइंड में बोलते हैं ना, रीजन आपको सक्सेसफुल बनाता है. तो मेरे को हमेशा वो रिकॉल होता रहता है कि क्यों मुझे खड़ा रहना है, क्यों मुझे चलना है. मेरे माइंड में एक चीज लाता है, क्या मुझे अपने आप को रुलाने के लायक बनाना है या किसी को इंस्पायर करने के लिए बनाना है. क्या बात है कि मेरे बारे में कोई सोच के रोएगा या मेरे बारे में सोच के कोई स्माइल करेगा और हंसेगा. कितनी बड़ी बात है. आई मीन जस्ट इमेजिन, there's a saying that goes, your image and you are what people say about you when you're not present in the room. जो आपके बारे में आपके पीछे बात हो रही है, आप वो चीज है. This is what he's selling. Are you making people smile or making people cry? Cry means in a different way. What he means is that it's wonderful to make people cry. मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है. But in this context it means कि मतलब, are they inspired by you or are they saying okay, that's यार ये क्या हो गया? That's what it is. So your brand is also like that. That's what it's saying. Because I think तारे ज़मीं पर भी आप उसी तरीके से बना रहे हो. And I keep seeing so many things. So this is like this is the latest issue I think you can see of the magazine तारे ज़मीं पर. ये अपना जून का issue है, and amazing. So we're a part of this. I do write articles on this one, but it's not about my articles. It's about how he does this kind of a thing. क्योंकि देखो 2 आर्टिकल लिखने में जो मुझे जिस चीज से गुजरना पड़ता है वो मुझे पता है, एंड इनके लिए कलेक्ट करना 50 आर्टिकल 50 पेज छापना एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर. आई मीन इट्स अ ह्यूमंगस टास्क, राइट? सो डू यू हैव अ टीम दैट हैंडल्स दिस? आप किस तरीके से करते हैं? वी हैव 8 पीपल ऑफ टीम. अच्छा, हैंडल करते हैं. या एक टाइम हम सब कुछ करते थे. एक टाइम में तो बस ये था, कभी सोचते नहीं थे, जिसका हमने नाम सुना हुआ है लोग वो हमारा, हम उन तक पहुंचे के. लेकिन आज लोग मेरे से स्टार्टिंग में बहुत बोलते थे, हम क्यों हैं इस मैगजीन में, क्या है, क्या मिलेगा. नॉर्मल तो मैगजीन है. आज मैं प्राउडली बोलता हूँ,
आज इस मैगजीन को वो लोग जानते हैं जो आपको नहीं जानते। BNI के फाउंडर, क्या बात है। BNI के फाउंडर, वाओ लुकिंग लाइक अ वाओ, वाओ। अमी बनाना, हाँ वड़ा पाव गर्ल, हाँ 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 बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, हाँ, they come into your magazine। बादशाह। मैं इसके बोलता हूँ कि वो इस मैगजीन को जानते हैं और उन लोगों के ऑफिस में ये मैगजीन पड़ी है। और हमारा कोई भी किसी का भी शो नहीं करते हैं तो ऑफिशियल होता है, वो शेयर होता है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब आज मैं प्राउड टू बोलता हूँ कि लोग मेरे से जुड़ते क्या, हमारा भी उन लोगों के नाम के साथ ऐड हो जाए। ऐड हो जाएगा, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या आई अंडरस्टैंड। मैं आई टोटली रेमिनाइज विद दिस थिंग, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग दिस शो एंड पीपल आस्क मी, यू नो, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। यू नो, वी हैड अ गेस्ट हु वाज ओवर हियर, शी इज अ बिग टाइम इन्फ्लुएंसर। आई थिंक आप मिले होंगे सेट्स पे, मुझे वो मीटिंग प्रियंका वाज हियर, प्रियंका जोशी, उनसे बात हो रही थी। शी सेड लाखों सब्सक्राइबर से फर्क नहीं पड़ता, 10 लोग हैं जो सुनते हैं, दैट इज व्हाट सब्सक्राइबर्स ऐड वैल्यू फॉर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो what a wonderful thing that Gaurav has said. First time when he started this one, people said इस मैगजीन को कौन जानता है, और today the thing is जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाएंगे through this magazine. So can you imagine the journey का expanse? वो statement कैसे transform हुआ कि आपको कौन जानता है, भैया जो आपको नहीं जानता वो भी आपको जान जाएगा। You know, it is so amazing. That is what, you know, dreams, you know, when they come full circle. लेकिन मैं ये कहूंगा नहीं कि अभी सपना पूरा हुआ है। I think ये शुरुआत है। कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किया? मतलब हो गया 6th ईयर चल रहा है मेरा। 6th ईयर चल रहा है, 6 साल में यहाँ तक पहुंचे। तो या आप तो मतलब इट हैज रीच द स्टेज जहां से इट विल कैटापुल्ट, राइट। मुझे ये लगता है। सो हाउ डू यू फाइंड द रिस्पॉन्स? व्हाट इज सो who does it cater to apart, मतलब is it only entrepreneurial community? What is it? What was your core? Basically we have a talent based audience, जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया है या जो करना चाहता है। So that's what it is. Who is talking about you? That is the most important thing. कि आप आ रहे हो, आपके बारे में बात हो रही है। Brilliant. What were the kind of challenges you faced in this one? चैलेंज तो मतलब मैंने स्टार्ट किया, मेरी लाइफ ही चैलेंज से हुई, Yeah. तो उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं रह गया। उससे बड़ा कोई और चैलेंज रह ही नहीं गया। बट यू नो, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देयर आर मेनी व्यूअर्स हु माइट बी थिंकिंग कि अच्छा मैगजीन बनाने के चैलेंजेस क्या है, क्या क्या मुझे सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो बोले वो कोई सफर कर रहा हो और उसको फिर लगे कि अरे यार इसको ऐसे ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि थी द फर्स्ट थिंग इज गेटिंग टू पीपल। हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंज? ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ, जब आपका रीजन आपका क्लियर रहता है ना कि वो चीज नहीं हुई, तो वही चीज आपको आगे बढ़ाती है। आपने देखा होगा, चाणक्य की मैं बात करता हूँ, चंद्रगुप्त का पहले से रीजन क्लियर था, मुझे अपनी माँ को आजाद करवाना है। हाँ। तभी उसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया। डे फट से कुछ नहीं था, हर कोई जीरो है और डायमंड बनने का सफर तय करता है। पर उसका रीजन क्या है, वो डेली अपने आप को पॉलिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये है। आज जो मैंने सीखा है 5 सालों में, आज मैं वही लोगों को सिखा रहा हूँ। आज वो से लोग मेरे पूछते हैं कि क्या है, मैंने 5 सालों में ये सीखा अपने आप को फ्रंट में कैसे रखना है। मैंने उसके लिए 1000 तरीके किए हैं, 100,000 तरीके किए। कैसी चीजें, कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे मेरे को मीडिया लाइन में रहता था, मुझे रहता था कि हर बार मुझे यार सामने रहना है, हाइट पे रहना है, तो उसके लिए मैं दिमाग लगाता था, कभी इन्फ्लुएंसर के साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। तो उसमें मैंने प्रैक्टिकली 100 चीजें करके 10 चीजें सीख ली। एब्सोल्युटली। उसमें मतलब मैं मानता हूँ जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रगल नहीं है, वो पार्ट ऑफ है। आपको जितना बड़ा बनना है उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, आप अपने साथ भगवान को लेके चलते हो ना, तो आप कभी झुकते नहीं। आप कभी झुकोगे नहीं, क्योंकि आपके साथ मतलब मैं परम पिता परमेश्वर है। इसमें एक चीज बोलता हूँ, कोई जिंदगी में ऐसा होता है ना, रीजन भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन तभी भी कई मोटिवेशन लैक होने लगती है। ओके, मैं ईश्वर के बारे में 4 कहना चाहूंगा। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मैं अंधेरे में जाता हूँ, पर उसका साथ होता है, वो अंधेरा पता ही नहीं चलता। जब जिंदगी में चला गया, वो मेरा हाथ पकड़ के चलता है, वो अंधेरे में मुझे धकेलता है कि तू जा। हाँ। मैं भटकता हूँ, मैं फुट के रोने लगता हूँ, भगवान मैं कहाँ पे आ गया, भगवान मैं कहाँ पे आ गया। हाँ। वो मैं अपना लाश मेहनत करता हूँ, जब मैं अपनी लाश मेहनत करता हूँ तब उसका हाथ पकड़ के जल होता है। हाँ। कहता है
तेरे को मैं आजमा रहा था, तू चलेगा या नहीं चलेगा। जब वो हाथ पकड़ के चलता है और मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। क्या बात है, बहुत ही स्पीचलेस। क्या बात बोली आपने। मतलब यू हैव टू बी ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। और ये इतनी अमेजिंग चीज है जो आपने बोली है, करता है तू कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। बस सच बात है। दैट इज कभी कभार जिंदगी में घमंड आता है हम्म कि लगता है यार लास्ट टाइम काम मेरे पास 2-3 बार हुआ, मैं किसी का नाम लेना कि वो आ गया, अब तो मुझे लगा भाई मैं तो कुछ नहीं। तो मुझे समझ आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, देने वाला वो है। देने वाला वो। मैं तो कभी कभार मतलब आंसू आ जाते हैं या कि भगवान मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो कुछ नहीं था। मतलब आज तूने कहाँ पे बिठा दिया। हाँ, एब्सोल्युटली। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि काम तू कर रहा है कन्हैया, तू काम कर रहा है, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। ये जो आपने बताई बात, दिस इज सो ट्रू। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ऑफ अ वंडरफुल स्टोरी। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था, या एक बंदा था। सिंस इट्स अ ब्रांड बिल्डिंग शो, इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, बिजनेस ओनर्स, तो मैं उनको उस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी को हल्का सा मोल्ड करके बताऊंगा। सो बिजनेस ओनर, ही मीट्स गॉड, और वो कहता है कि भाई यू आर गॉड। कहता हाँ मैं ही हूँ। कह रहा है कि आप कैसे फ्यूचर डिसाइड करते हो, कैसे पता लगता है? कहता है कि देखो, फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ मैं आपके साथ था, क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई। कह रहे आपने मेरा साथ तो दिया ही नहीं। कह रहे क्या? कह रहे कैसे पता? कह रहे दिखाओ मेरे को, यू आर देयर विथ मी, मैं देख रहा हूँ, मेरे को अपनी लाइफ जर्नी देखनी है। सो जस्ट शो मी माई लाइफ जर्नी, मुझे भी तो पता लगे कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं कहाँ सही या कहाँ गलत है। ठीक है। तो उन्होंने ना लाइफ की जर्नी दिखा, और जर्नी में ना पता क्या था, पदचिन्ह थे उसके, छोटे से पदचिन्ह से बड़े से होते हुए, और साथ में एक और पदचिन्ह जो भगवान के थे। अब वो दोनों पदचिन्ह एक साइज के होकर ओवरलैप कर रहे और चलते जा रहे हैं, और एक जगह वो देखता है कि एक ही पदचिन्ह है, दूसरा है ही नहीं। तो कहता भगवान देखा ना, मेरा सबसे गलत टाइम था ये, सबसे बुरा समय। देखो तुम थे ही नहीं मेरे साथ, मैं ही अकेला चल रहा था। सो भगवान कहता है कि ये तू नहीं चल रहा था, ये मैं चल रहा था, और मैंने तेरे को गोद में उठाया हुआ था। तुझे किसने बोला कि ये तेरे बच्चे में? सो दैट इज द ब्यूटी, लाइक वी शुड हैव फेथ। मतलब गॉड इज देयर विद अस, एंड राम भरोसे बोलते हैं ना भैया, राम भरोसे, ये बहुत अच्छी वर्ड है। भगवान भरोसे, राम भरोसे, मैं बहुत बोलना चाहूंगा, या प्लीज। मतलब एडिशन कभी भगवान को नहीं मानते थे, नाचते थे, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा मैं हार गया था, मैंने कोई सुप्रीम पावर से प्रे की, और उस रात में मुझे वो एग्जैक्ट रिजल्ट मिला, और उसी वजह से मैं बल्ब का इन्वेंशन कर पाया। तो उसने तक ने बोला कि वी बिलीव इन गॉड। हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की करेंसी में भी लिखा होता है वी बिलीव इन गॉड। नहीं, एब्सोल्युटली। देखो, देयर इज सम सुपर पावर दैट इज, आप यहाँ हैं तो कोई तो रीजन है जिसकी वजह से है। आपने सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी तो वो संभाल लेगा। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, तो इसी बात पे जो आपने बताया कि करने वाला तू है, नाम मेरा हो रहा है, एंड जिस तरह से आपने बताया लुकिंग एट द स्ट्रगल, कि अब करते रहोगे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बस करता रहूंगा। सो ऑन दैट देयर इज समथिंग लाइक वी एवरीबॉडी स्टार्ट वेरी स्मॉल and we grow big. And on that count, I would like to give you something from all of us here at Team T Gibbs. So this is from our gifting sponsor. Thank you so much, my friends at the studio. A plant जो खुद भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे जा रहा है, और एक दिन सबको छाया देगा, जैसे आज तारे जमीन पर has reached a stage where it is going to expand to the next level. So a small token of our regards by Thank you so Grow Green Wonders. They are our gifting partners. So please go down to their Instagram page, Grow Green Wonders के Instagram page पे जाएं, to get in touch with them. Sanjay Tulani is the name of the person. So this is a small token of our Thank you regards so much. to you, and I'm sure आपको इसकी वैल्यू पता होगी कि कोई चीज छोटी है उसको बड़ी कैसे करनी है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। आपने उसको ऑलरेडी तारे जमीन पर कोई जगह पे लेकर आया है। So you can carry it when you head out from the studio. Definitely pack it and give it to you. Thank you so much, friends, over here. This one, and so this brings us to another thing. I know a little bit of fluctuations going on, but we'll continue with this thing because, right?
कोई दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइफ में फ्लक्चुएशंस होती रहती है, काम नहीं रुकना चाहिए, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ द शो। रुको मत, करते रहो। सो हियर्स दिस, लेट्स एंटर आवर रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो दीस आर 10 क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू। ओके, आप 5 सेकंड में जो आपको हर एक का आंसर लगता है आपने बताना है। सो Okay. इट्स अ फन थिंग, बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ, काफी पैशनेट है आप, ओके, एंड आई थिंक योर एनर्जी इज सिंपली अमेजिंग एंड इनफेक्शियस। मजा आ गया, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। लोग कहते हैं यहाँ शो पे आने के बाद हमें नहीं, आज तक ऐसा इंटरव्यू हमारा किसी ने नहीं लिया। मैं कहता हूँ मैंने आज तक किसी ने ऐसा इंटरव्यू That's नहीं right. दिया आज तक। इट इज रियली अमेजिंग विद द काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई सी, क्यों, लेट मी लुक एट द टीम, व्हाट डू यू सी टीम, क्या आपको लगता है, इजंट इट अमेजिंग? या देयर यू सी, यू कैन हियर देम। सो द वन वर्ड दैट डिफाइंस एंटरप्रेन्योरशिप। स्ट्रगल। स्ट्रगल, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब इट्स अ स्ट्रगल फॉर लाइफ दैट यू हैव टू डू। ठीक है, एवरी हर एक का अपना नजरिया। स्ट्रगल का मतलब आपने लगे रहना। आई थिंक दैट्स व्हाट यू मीन। इट डजंट मीन दैट कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लाइक करते रहना। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। It's a part of life. Okay, second, the worst thing that a brand owner could do. गिव अप, गिव अप। Give up. Okay. If you're a magazine owner, don't give up. लोग पढ़ेंगे, एक दिन आएगा, अपने ऊपर काम करो, कंटेंट पे काम करो, मिलो लोगों से और आगे बढ़ते रहो। Number 3, the easiest way to make a brand sell. नथिंग। Nothing. There is no easy way. क्या बात है? My God, everything requires its own set of efforts. I mean, this is simply one of the best answers I have received till date. The greatest offer you could make to a customer. नथिंग। Nothing to क्योंकि offer. किसी को फ्री में दे लो तो भी कोई कदर नहीं, पैसा में दे लो कोई भी। एट अ पॉइंट आपको सेटिस्फाई करना पड़े। ना आपको, मतलब आप करते रहो जो आप कर रहे हो। There is nothing better than what you can. If there is something better, you would have been doing it. You keep working on that one. अपने ऊपर करते रहो काम और चलाते रहो. So yeah, why not? Why not? So the best one word compliment you could give to your team member. क्योंकि मेरा मानना यह है कि branding begins inside. Your first customer is your team member. वो खुश तो दुनिया खुश. So what is the one word compliment that you could give to your team member? इट इज अ फैमिली। फैमिली। और फैमिली में सब कुछ होता है। एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, उनको करेक्ट भी करवाते हैं, और एक दूसरे को हम बहुत प्रेरणा भी देते हैं और कहते हैं हो जाएगा यार, करता रहे, क्यों नहीं, राइट। नंबर 6, द प्लेस वेयर मैगजीन ओनर्स हु आर इनटू मैगजीन्स एंड ऑल, दे गो रॉन्ग। दे डू सेल्स पिच। They do a sales pitch. Okay. थ्रू BNI I learned this. आप दोस्त बनाओ। दोस्त बनाओ। Don't do a sales pitch. Do a friend pitch. Make a friend. जैसे मान लो एक एग्जांपल बोलो, मैंने आपको अच्छा दोस्त बनाया, हाँ. तो आपने मुझे कितना बिजनेस दे दिया। Absolutely. क्या बात है। Number 7, the best compliment you would love to hear for your brand. जो मेरा वसीम बोले है ना, वही मेरे लिए। अरे क्या बात है, दोस्ती एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, क्या बात है। वसीम ने जो बोल दिया सराखों पे। तो वसीम भाई, हम जरूर जानना चाहेंगे कमेंट्स में कि आप क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे अपने मित्र सखा गौरव पोरवाल को। ऑलराइट, नेक्स्ट, द वन थिंग you say to yourself when you wake up first thing in the morning. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ। भगवान मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Yeah, because he is with you, you can do anything. Everything is possible now is the positioning statement of my agency, SCBS Global Branding Private Limited. How similar we think, yeah. So, question number 8. The one thing you say to yourself when you wake up first thing in the morning. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है। क्या बात है। उठते ही ऊपर वाले का नाम लो। The last thing you say to yourself before you go to sleep. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ। I mean, this is really amazing. Viewers, you know why? आपको ध्यान होगा, अगर आप सारे एपिसोड देख रहे हैं, how many people have taken the name? भगवान का नाम कितने लोगों ने? How many people are remembering God? Remembrance is a powerful weapon. It turns, it is the thing that is responsible for miracles. It makes miracles happen in your life. कितना अच्छा लग रहा है कि कितने मैं दो चीज बोलना चाहूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, एब्सोल्युटली। मतलब बोलते हैं ना, हम जिंदगी में अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई नहीं आया। वो चीज सही है। जब आप जिंदगी में अकेले होते हो ना, तना होते हो, हाँ, वो बोलते हो ना, आप अपना दर्द खुद ही समझ सकते हो। हाँ,
Nobody can understand. Nobody can understand. कि आपके अंदर किल कितनी है वो आपको पता है, हाँ. दर्द कितना, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, लेकिन जब आप उससे कनेक्ट होते हो ना, उसे आप A to Z पता है, कितने आप अच्छे हो, कितने आप बुरे हो. वो डॉक्टर है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है. वो उस तरह से ही आपको ट्रीटमेंट देता है. मतलब इस चीज को ये नहीं कि किसी ने बोल दिया भगवान को मान, जब ये चीज आप दिल से मांगते हो ना, तो मैं देखता हूँ, मैं कभी भगवान से नजर नहीं मिला पाता हूँ, नहीं मिला पाता. जब आपका ऐसा इंटरेक्शन होता है ना, हाँ. तो आप भगवान को मानते हो. वो बहुत बड़ी इमेजिनेशन है, उसके बिना कोई कायनात नहीं चलती. जब वो चीज जब अपने साथ लेके चलते हो ना, तो आप खुश रहते हो. एब्सोल्युटली. पैसा आता है, पैसा आएगा जाएगा, वो अलग है. हाँ. लेकिन वो सारे लोग बोलते हैं पैसा भगवान का रूप है, लेकिन मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भगवान पैसे का रूप है. जब आपकी जेब में पैसा नहीं, कोई नहीं आएगा. हाँ. लेकिन उसको कमाने की मोटिवेशन कहाँ से लाओगे? एब्सोल्युटली. वो अंदर से हमारा भगवान देता है कि थक मत मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ. और यही मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाती है कि लगता है भगवान तू तो मेरे साथ है, कल कोई बात नहीं, कोई नहीं साथ नहीं. Brilliant. So the last thing over here, absolutely never lose faith, have faith. Faith can work miracles. मेरे प्रिंसिपल ने ऑटोग्राफ डायरी में लिख के दिया था मुझे 12th क्लास पे, ये छोटे मगज में आती याद है, and I follow that. The last thing you say to yourself, you're going to see we've done that. Now the last question, the greatest punchline you have ever come across regarding your brand. किसी ने कुछ बोला हो आपके ब्रांड के बारे में? एक था, एक राजीव बब्बर है, तो उसने मुझे छोटी टीम से बढ़िया देखा था. मतलब उसने वो था जिसने स्टार्टिंग से देखा हुआ है. हाँ. उसने मुझे एक चीज बोली थी, जब उसने कंटिन्यूसली नाम सुन रहा था वो मेरी बड़ी बड़ी जगह, उसने बोला गौरव तू बहुत सही जा रहा है. तू बहुत सही जा रहा है. क्या बात है. मतलब गौरव, मतलब TCP, you're doing ultimate, you're heading in the right direction. So that is it, and so happy. Thank you for these natural answers जो आपने एकदम candid तरीके से दिया. And on that count, I would like to before we depart tonight, I would like to present you with this wonderful gift hamper from our gifting partners, Arogya Gluten Free Foods. They have given some dry fruits which are there which you can enjoy, और gluten free आटा कर रहे हैं. बहुत रिसर्च करके उन्होंने निकाला. वंडरफुल थिंग फॉर यू. एंड आई थिंक ब्रांडिमस मैक्सिमस में आपने वी हैड रिटन अबाउट देम, राइट? और आप मिले भी, आयुष्मान इज द पर्सन. देन वी हैव डॉक्टर मीनूज. It's a brand that is rising by the day. The range of cosmetics that she's doing, it's all skincare. So thank you so much. And the basket has been made by Sneha Verma. She's actually helping craftsmen from northeast of India, and unki livelihood ke liye she is promoting these woven baskets. So thank you so much for that. On behalf of all of us on team, the Great Indian Brand Show, this is a small token of our regard for you. Thank you so much. Right? So on that count, I would like to say one thing before we sign off for tonight. चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Have faith, प्रभु में विश्वास. जिंदगी का कंट्रोल आपके पास. सिंपल. आई थिंक आई मेड दैट अप राइट एज वी आर स्पीकिंग. प्रभु में विश्वास, तो जिंदगी का कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास, आपके ब्रांड का कंट्रोल आपके पास. अब जीतो भारत का दिल. दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. लेट्स हेल्प ईच अदर. अगेन आई रिपीट, हम लोग 140 करोड़ की जनता नहीं, 140 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के लिए. एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. अ शो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, the Great Indian Brand Show with Sudarshan Achatur, and today's guest was Gaurav Porwal, the owner of Tare Zameen Par magazine. Thank you so much. मिलते हैं अगले हफ्ते with another fantastic guest. Until then, जीतते रहो भारत का दिल. See you. It's rocket launching day. Right on, it's time to play. All set, ready to go. Far away.